This is Sarhan, guys. Let's start February March 2020 variance 52, paper 5, planning, analysis, and evaluation. Question number 1. It's a titration thing, I think so. Yeah, I think so. Let's read the question carefully. Brass is an alloy of copper and zinc, and according to O-level chemistry, alloy is basically the mixture of metals. Okay, and obviously different metals होते हैं, इसलिए copper लिया, zinc लिया है. Now the next is typical copper concentrations vary from 50% to 85%. Depending upon the properties needed in the alloy, there may be small amount of other metal present. दो याद रखिएगा, ये दो तो होते ही हैं, तो ब्रास में और कौन सा हो सकता है? ब्रास में सिल्वर भी हो सकता है. Might contains silver. A student found a method to determine the percentage of copper in a sample of brass. Percentage of copper calculate करना चाहते हैं हम. So percentage of copper हम सिर्फ उसी वक्त calculate कर सकते हैं जब हमें mass of copper मालूम हो, जो कि हम calculate करेंगे इस experiment के थ्रू, जिसका procedure हमें दिया गया है step 1, step 2, step 3 की फॉर्म में, over mass of sample होगा हमारे पास into 100. And guys, mass of sample is given in the question, which is 2 gram. Okay, and it has to be in the powder form. Powder form just लिए to increase the surface area. Okay, a known mass of brass powder is reacted to brass powder to increase the surface area. To increase the surface area with an excess of concentrated nitric acid. Remember one thing very, very clearly, that concentrated nitric acid is acting as an oxidizing agent as well. Okay, both copper and zinc, any other metal present, are oxidized in aqueous ions by nitric acid. That's a very powerful statement. कि जिंक होगा, कॉपर होगा, या कोई दूसरा भी मेटल अगर मौजूद होगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और एक्वस आयंस में कन्वर्ट होगा नाइट्रिक एसिड के थ्रू. तो ऑक्सीडाइज अगर कह रहा है तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है. Current of copper ions present can be determined by titration technique. I told you कि titration है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ reagents देख लिए थे, उन reagents से मुझे अंदाजा हो गया था कि titration होगी. Okay. Okay. Next is weigh both accurately weigh by difference approximately 2 gram brass powder and place the brass into a small glass beaker. Okay. In a fume cupboard, add approximately 20 cm cube of concentrated nitric acid to the brass in the beaker. Allow the brass to completely react to form solution A. So why are we using fume cupboard? फ्यूम कबर्ड यूज करने की दो डिफरेंट रीजंस हैं. पहली रीजन कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कोरोसिव होता है. कोरोसिव होने के साथ साथ इसके फ्यूम्स भी होते हैं.
fumes of concentrated nitric acid. तो ये फ्यूम्स आप इनहेल ना कर सकें इसलिए हम फ्यूम कवर्ड यूज करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर आप नोट करें, जब कॉपर और नाइट्रिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बनता है, यानी कॉपर 2 आयंस हैं, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है. एंड दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, एसिडिक गैस होती है ये भी, राइट, एंड कॉजेस ब्रीथिंग प्रॉब्लम. तो आपको ब्रीथिंग इशू ना हो इसलिए हम फ्यूम कवर्ड यूज करते हैं. सही है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज NO2 is toxic. ठीक है, दोनों चीजें हैं. Dilute all solution A to form exactly 250 cm cube of solution B. तो अगर मुझे 250 cm cube of solution B की बात करनी है तो obviously I will use volumetric flask. Okay. All right. Then next is place 25.0 cm cube of solution B into a conical flask. ठीक है, conical flask में मैं 25 cm cube प्लेस कर देता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं 25 cm cube मेजर कैसे करूँगा. मैं 25 cm cube दो से मेजर कर सकता हूँ. मैं पिपेट से भी मेजर कर सकता हूँ, मैं ब्यूरेट से भी मेजर कर सकता हूँ. आपकी मर्जी, आप ब्यूरेट लेते हैं या पिपेट लेते हैं. पिपेट यूजुअली 1 डेसिमल प्लेस होती है, यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है, इसलिए मैं ब्यूरेट को प्रायोरिटी दूंगा. ओके, ऑलराइट. बट आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं. मेरी प्रायोरिटी ब्यूरेट होगी क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट वॉल्यूम है. अगर ये होता ना 25.0 cm क्यूब तो फिर मैं पिपेट ले लेता, लेकिन ये कह रहा है 25.00 cm क्यूब, दैट इंडिकेट्स ब्यूरेट. उसके बाद कह रहे हैं यूज ड्रॉपिंग पिपेट टू ऐड एक्वस सोडियम कार्बोनेट टू सॉल्यूशन बी. अच्छा, in the conical flask until there is no more acid present. चलें, ये तो रीजन पता चल गया कि मैं सोडियम कार्बोनेट क्यों ऐड कर रहा हूँ. रीजन उन्होंने खुद दे दी कि why are we adding sodium carbonate until there is no more acid present. वो पता कैसे चलेगा कि भाई एसिड अब नहीं है. तो आप जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करेगा एफरवेसेंस रिलीज करेगा. जब एफरवेसेंस आना बंद हो जाएंगी इसका मतलब जो एसिड है वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा सोल्यूशन के अंदर, वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है. तो until no more acid is present का मतलब क्या होगा कि no more effervescence is given off. No more effervescence is given off. ओके. एक और बात देखो, आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड था, ठीक है, आपने उसको 2 ग्राम ब्रास से रिएक्शन करवाया, तो ब्रास में जो कॉपर है वो रिएक्शन करेगा और कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होगी फ्यूम कवर्ड से, वाटर आपके पास सोल्यूशन के अंदर है, तो ये बेसिकली कॉपर 2 आयंस है. अब आपने क्या किया, इसी के अंदर आपने सोडियम कार्बोनेट ऐड किया, तो सोडियम कार्बोनेट ने क्या किया, जो रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया. तो ये भी खत्म, ये भी खत्म. अब ये एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास कॉपर 2 नाइट्रेट इन द सोल्यूशन. ओके, ये याद रखना. तो कह रहे हैं approximately 20 cm cube of aqueous potassium iodide to the conical flask. A white precipitates forms as well as a brown solution of aqueous iodine. अच्छा, ये A2 केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको सॉल्व करवाया है एक रिएक्शन. जब मैं केमिस्ट्री ऑफ कॉपर पढ़ा रहा था मैंने उसमें बताया था आपको, मैंने कहा था कि अगर आपके पास सोल्यूशन में कॉपर आयंस हैं जो कि मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं कॉपर नाइट्रेट की फॉर्म में, और आप उसमें एक्सेस एक्वस पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर 1 आयोडाइड प्लस आयोडीन में. ये जो आयोडीन है इसका ब्राउन सोल्यूशन आपको मिल रहा है, और ये जो कॉपर 1 आयोडाइड आपके पास आए हैं इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिल रहे हैं. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिले कैसे हैं आपको. ठीक है, क्यों कह रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स एग्जैक्टली किसके हैं, कॉपर 1 आयोडाइड के हैं.
और इसका क्या है, ब्राउन सोल्यूशन। ठीक है, फिल अ ब्यूरेट विद 0.1 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन। सोडियम थायोसल्फेट आप जानते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा। और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप जानते हैं आयोडीन इज बेसिकली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेसिकली आयोडीन और सोडियम थायोसल्फेट आपस में रिएक्शन करेंगे। और ये इंफॉर्मेशन भी मैं शेयर कर चुका हूं आपके साथ, एएस केमिस्ट्री में भी, A2 केमिस्ट्री में भी, कि अगर आप आयोडीन को सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है आयोडाइडाइंस में, यानी ब्राउन सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस। इसका ब्राउन सॉल्यूशन होगा, ये कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में आपको मिलेगा S4O62 नेगेटिव, उसको कहते हैं टेट्राथायोनेट आयंस। ऑलराइट, तो ये टाइट्रेशन के थ्रू हम सारा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज carry out the titration of the aqueous iodine produced in the conical flask against 0.1 mole per dm cube sodium thiosulfate। तो वो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, सही है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को उठाता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ, सही। यहाँ पर ज्यादा सूटेबल है एज कम्पेयर टू द एज कम्पेयर टू दिस वन, सही है ना। All right, is there anything left in this? It's quite interesting, a lot of information in this whole procedure. Okay, okay. Outline how the student should accurately weigh a difference in step 1 in order that the exact mass of brass transferred into the small glass beaker is known. Include a results table with appropriate headings ready for the student to fill in. Okay. ये एक्चुअली 2 ग्राम ऑफ ब्रास पाउडर है। सो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, मैं ऐसा करते हैं कि हम या ये हमारे पास एक एम्प्टी बीकर होगा। ठीक है, इस बीकर के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, मास ऐड कर देंगे ब्रास का। ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ बीकर प्लस ब्रास। इसको उठाएंगे हम और एक सेपरेट बीकर के अंदर प्लेस कर देंगे। और इसमें क्या है आपके पास, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सही है, तो ये आपने इसमें प्लेस कर दिया। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, मास ऑफ बीकर प्लस ब्रास। तो अब होगा क्या कि जब ये सोल्यूशन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये सॉलिड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा इस सोल्यूशन में, तो यकीनन यहाँ कुछ ना कुछ रह जाएंगे। तो जो रेजिड्यू आपके पास रह जाएगा आप उसको रीवे करोगे और रीवे करने के बाद फिर डिटरमिन करोगे। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, उसके हमें स्पेस भी दी हुई है ताकि हम यहाँ पर कुछ लिख सकें। चलिए मैं पहले लिखता हूँ फिर मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि मास ऑफ एम्प्टी बीकर
ये मैं मेजर करूंगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू। फिर उसके बाद मैं बीकर और जो सॉलिड है मेरे पास ब्रास पाउडर उसको वे करूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद जो मास ऑफ ब्रास यूज हुआ है इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के लिए उसको नोट डाउन करूंगा। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। अब इसको लिखेंगे कैसे? आप यहाँ लिख सकते हैं मेजर द मास ऑफ empty beaker। ठीक है, नहीं अलाउ नहीं, आप यहाँ लिखेंगे नहीं, अच्छा कोई वर्ड, प्लेस ऑल द brass has been poured into the beaker poured की spelling p poured into the beaker, right? उसके बाद रीवे करोगे बीकर को, रीवे द बीकर with residual solid brass। ठीक है, कुछ इस तरह से करना होता है हमें। तो दोबारा से सुन लीजिए कि हमने एक एम्प्टी बीकर लिया, इसका मास वेट किया, फिर इस बीकर के अंदर हमने टू ब्रास पाउडर को प्लेस किया। उसको प्लेस करने के बाद हमने इसको ट्रांसफर किया इस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के सोल्यूशन में। तो यकीनन ट्रांसफर के बाद यहाँ कुछ ना कुछ रह जाएगा, तो उस जो रह जाएगा हमारे पास रेजिडुअल ब्रास उसको रीवे करेंगे, यानी इसको ट्रांसफर करने के बाद जो कुछ रह जाएगा उसको दोबारा से रीवे करेंगे। ओके, नेक्स्ट, सजेस्ट व्हाई इट इज नेसेसरी टू डू स्टेप 2 इन फ्यूम कबर्ड। पहली बात, NO2 is toxic, causes breathing issue, also concentrated nitric acid is corrosive, so it has fumes as well. Okay, outline how the student should carry out step 3, include the name and capacity of the suitable place or suitable piece of apparatus in which solution B should be prepared. Okay, outline how the student should carry out step 3. What is step 3? अच्छा चलिए, name the capacity and suitable piece of apparatus in which solution B should be prepared. अच्छा, solution B को prepare करना है, but solution B carry out कैसे होगा in step 3? step 3 में क्या है? Okay, तो मैं 250 cm³ बना रहा हूँ, यानी डाइल्यूट कर रहा हूँ solution को via volumetric flask। ठीक है, make sense।
ओके ओके, इसको फ्रेम करना है। और याद रखिएगा कि मेरे पास सॉल्यूशन बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन को मैंने डाइल्यूट करना है 250 cm क्यूब में। किस तरह से स्टार्ट करेंगे इसको? तो हम यहाँ लिख सकते हैं fill 100 cm cube of distilled water in a 250 cm cube, 250, 250.0, 250.0, 250.0 cm cube volumetric flask. ओके, उसके बाद जो हमने ये मिक्सचर बनाया है, हम इस मिक्सचर को इस कॉनिकल फ्लास्क में, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लेस करेंगे। देन pour the solution mixture in the volumetric flask. याद रखिएगा कि ये जो सॉल्यूशन मिक्सचर है, ये जो सॉल्यूशन मिक्सचर है, इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड ब्रास, और ब्रास में जिंक है, कॉपर है और सिल्वर भी है, ठीक है। अदर, जिसको अदर मेटल आयंस भी कहा हुआ उसने। पोर करने के बाद मैं इस बीकर को, जब ये ट्रांसफर कर दूंगा मैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, तो मैं इस बीकर को वॉश करूंगा और उस वॉशिंग को भी उठा के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस करूंगा। वॉश द बीकर with distilled water. Wash the beaker with distilled water. Transfer this washing in a volumetric flask. Okay. वॉशिंग ट्रांसफर करने के बाद मैं टॉप अप करूंगा up to the 250 cm cube mark. Top of the flask up to 250 cm cube mark. ठीक है, और मार्क करने के बाद स्टॉप पर करूंगा मैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को। So stopper the volumetric flask and shake it well, ताकि solution अच्छे से मिक्स हो जाए, and shake it well, ठीक है। ओके, तो मैंने नाम भी बता दिए, कैपेसिटी भी बता दी। ठीक है, ओके। इन एग्जैक्टली मैंने पीस ऑफ एपरेटस भी बता दिया, ठीक है ना, कौन सा है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। आगे चलते हैं। Name the apparatus needed to transfer solution B into the conical flask in step 4। तो step 4 में
मैंने आपको कहा हुआ या तो पिपेट या फिर ब्यूरेट, दोनों यूज कर सकते हैं, मैं दोनों लिख के दे रहा हूँ, आइदर पिपेट और ब्यूरेट। वैसे मेरी नजर में ब्यूरेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25.00 cm³ दिया हुआ है, ठीक है। प्रायोरिटी में चेक कर भी रहा हूं, यहाँ पर ब्यूरेट को दूंगा बिकॉज ऑफ दैट वॉल्यूम, बट यू कैन यूज पिपेट इवन, ठीक है, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। आई मस्ट से स्टेट हाउ the student would know there was no more acid present in the mixture in step 5। मैंने कहा था आपको step 5 में no more gas is given off, तो आप यहां लिखेंगे no more effervescence is produced, okay, no more effervescence is produced। Okay, the student is given 200 cm³ of 0.1 mole per dm³ sodium thiosulfate, so we know the volume, we know the concentration of sodium thiosulfate. What is asking, outline how the student should use this solution to fill the burette in step 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, फिल द burette और आउटलाइन करना है। ओके, और क्या कह रहे हैं, इंक्लूड एनी रेलेवेंट प्रोसीजर्स द स्टूडेंट शुड फॉलो टू इंश्योर द burette is correctly filled before any readings are taken। अच्छा, अगर आपने पेपर 3 अटेम्प्ट किया हो और पेपर 3 के अंदर आप जब टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले burette को पहले डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं, और डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद आप फिर उस burette को रिंस करते हैं। क्योंकि मैं सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन burette के अंदर ले रहा हूँ, लिहाजा मैं एक बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम लेकर सोडियम थायोसल्फेट के सोल्यूशन से burette को रिंस करूंगा। याद रखिएगा कि आपका एक वाल्व अटैच होता है burette में, जिसको आप खोल बंद करते हैं, जिससे सोल्यूशन जो है वो ट्रैवल करता है या पास करता है, राइट, burette की टिप से। सो मैं क्या करूंगा, उस स्टॉपर को या उस वाल्व को बंद करके रखूंगा ड्यूरिंग रिंसिंग, सही है। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं उस वाल्व को ओपन कर दूंगा, तो ये कि जो burette की टिप है उससे भी सोडियम थायोसल्फेट ट्रांसफर कर लेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और वो पूरा का पूरी जो burette है वो रिंस हो जाएगी। दैट्स हाउ द रिंसिंग टेक्स प्लेस। जब हमें टाइट्रेशन करनी होती है तो उससे पहले हम ये सब करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहला काम तो ये लिख देता हूँ, यहाँ बता देते हैं कि रिंस द होल burette including valve and tip of the burette। Tip of the burette with distilled water, oh sorry, with sodium thiosulfate। ओके, ये मेरा पहला काम आ गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं burette के अंदर फनेल लगाऊंगा और फनेल लगा के सोडियम थायोसल्फेट को फिल करूंगा। ओके, प्लेस फनेल, तो स्टिल फनेल भी कहते हैं इसको, प्लेस फनेल into the burette and then pour sodium thiosulfate solution
pour sodium thiosulfate solution in it till 0.00 cm cube. ठीक है, और आप जानते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट का कलरलेस सॉल्यूशन होता है, तो कलरलेस सॉल्यूशन के लिए मैंने इससे पहले वाले पेपर में सॉल्व करते हुए बताया आपको कि लोअर मेनिस्कस रीड करते हैं. So read the lower meniscus since the solution is colorless. Read the lower meniscus. Read the lower meniscus because it is a colorless solution. Okay. And measure the initial reading. And obviously वो initial reading क्या होगी आपकी 0.00. That is 0.00 cm cube. तो हम क्या करते हैं, हम फिल करते हैं 0.00 cm cube तक, और वो हमारी इनिशियल रीडिंग होती है. ठीक है, और वो इनिशियल रीडिंग हम किसके थ्रू ले रहे होते हैं, लोअर मेनिस्कस के थ्रू, बिकॉज कलरलेस सॉल्यूशन होता है. और अगर कलर्ड सॉल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली गाइस फिर वो आपका हो जाएगा अपर मेनिस्कस. Okay, the titration table student used is shown. Complete the table and calculate the mean titer. So I need to find out the mean titer used in calculating the percentage of the copper. Show your working. Okay. तो बेटा 20.050 और 0.0, तो ये हो जाएगा 20.50, क्योंकि उन्होंने 2 डेसिमल प्लेस तक लिया, तो हम इसी तरह से आंसर देंगे. 40.25 or 20.60 is going to be 19.65, then 19.90, and then 39.65, and this is going to be 19.75. Okay. तो यहाँ से बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स कौन से होंगे? ऑब्वियसली ये दोनों बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि ये दोनों कंसिस्टेंट रीडिंग्स हैं. कंसिस्टेंट रीडिंग्स, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स भी कह सकते हैं आप इनको. और ये कंसिस्टेंट रीडिंग्स क्यों हैं? क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रही हैं 0.1 प्लस माइनस cm क्यूब की रेंज में, राइट? नाउ लेट्स टेक आउट द एवरेज वॉल्यूम, एंड सिंस डिमांड्स द वर्किंग, इसलिए हम वर्किंग दिखा देते हैं. 19.65 प्लस 19.75 डिवाइडेड बाय 2. ओके, ये हो जाएगा 19.65 प्लस 19.75 divided by 2 is going to be 19.7. ऑलराइट, लेकिन जब हमने यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस पे आंसर दिए हैं, तो मैं ऑब्वियसली 19.70 cm क्यूब लिखूंगा. ठीक है, ऑलराइट. Okay. Next, burette used student has a graduation of 0.1 cm cube. तो अगर graduation 0.1 cm cube है, तो error in single reading क्या होगा? Error in single reading क्या होगा? 0.05 cm cube, right? और हम क्या करते हैं, हम इनिशियल रीडिंग भी लेते हैं, हम फाइनल रीडिंग भी लेते हैं, 2 रीडिंग लेते हैं. इसका मतलब अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और उसके लिए मुझे ओके 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 ओके, एक मिनट या अगर मुझे परसेंटेज एरर डिटरमिन करना है और वो मुझसे वर्किंग मांग रहे हैं, तो यकीनन मुझे एक स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए, और उन्होंने वो वॉल्यूम मेंशन किया कि टाइट्रेशन नंबर 2 का वॉल्यूम यूज करो. ओके, सो मैं एक्चुअली क्या करूंगा, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, and for that error in single reading is going to be 0.05. it has to be multiplied by 2 because हम initial final reading देते हैं. और टाइट्रेशन नंबर 2 का वॉल्यूम कितना है मेरे पास, 19.65, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे
19.65 से into 100 करेंगे, so I believe it's going to be 0.5089%. All right, तो अगर मैं इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख कर दूं तो ये आंसर हो जाएगा 0.51%. उन्होंने यूनिट मेंशन नहीं की तो इसलिए यूनिट मेंशन करना जरूरी है. ठीक है, ओके, आसान था ये तो पार्ट. नेक्स्ट, अदर देन अ चेंज इन apparatus. अदर देन द चेंज इन apparatus. चेंज इन apparatus को नहीं देखना हमने. Suggest one change to the experiment which would lead to the reduction in the percentage error in the major titer. Okay, okay. अब जरा भाई एक मिनट के लिए देखो, कुछ प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन है. पहली बात तो ये कि परसेंटेज एरर आपके पास है 0.05 into 2 divided by 19.65 into 100. ओके, और मुझसे वो कह रहे हैं which would lead to the reduction in the percentage error. So we want to reduce this percentage error. ये percentage error मुझे reduce करना है, और ये reduce उस वक्त होगा जब ये वैल्यू इंक्रीज होगी. आप जानते हो ना, ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, राइट? So if I increase this value, obviously this value is going to be decreases. तो अगर मैं टाइटर वैल्यू बढ़ा दूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं higher the tighter value, lower the percentage error. एक तो कॉन्सेप्ट का पार्ट ही आ गया. ठीक है, अच्छा एक और भी मसला है भाई, ये टाइटर वैल्यू इंक्रीज कैसे करूंगा? तो देखो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स ओवर वॉल्यूम. यानी मैं अगर वॉल्यूम को बढ़ा दूं तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ऐसा ही है ना? या यूं कह लो कि कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. तो मुझे एक्चुअली ये वॉल्यूम बढ़ाना है, तो वॉल्यूम उस वक्त बढ़ाओगे जब ये कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, राइट? तो ये एक और पॉइंट आ गया मेरे पास. एक मार्क के लिए सोचना बहुत पड़ रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहता हूँ. आई नीड टू इंक्रीज दिस वॉल्यूम सो दैट ये परसेंटेज एरर कम हो जाए. तो पर ये वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा? अगर मैं कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दूंगा. ओके, सो डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन increasing the volume. और मुझे वॉल्यूम ही बढ़ाना है, सही है? सो वॉल्यूम ऑफ टाइटर volume of titer needs to be higher, for smaller percentage error. In order to do that, we use this. No. In order to do that, we need lower concentration of sodium thiosulfate. Okay, सही है भाई? सोडियम थायोसल्फेट की कंसंट्रेशन गिवन थी ना? कहाँ गिवन थी? यस, ये रही. ये कंसंट्रेशन 0.1 इससे कम होनी चाहिए. ठीक है, सो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ. सो
नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं. वी नीड lower concentration of we need my goodness, लिखा तो सही है मैंने. we need concentration of sodium thiosulfate lower than कितनी थी? I'm sorry, मैं भूल गया हूँ. 0.100, lower than 0.100 मोल पर dm क्यूब. मेक्स सेंस. ठीक है. अच्छा, ये टाइटर वैल्यू किसकी थी भाई? ये टाइटर वैल्यू सोडियम थायोसल्फेट की थी, क्योंकि आपने सोडियम थायोसल्फेट को कॉनिकल ब्यूरेट के अंदर लिया था. याद है स्टेप 7 में? मैं लिख देता हूँ ये बात भी, वरना भूल ना जाए आप लोग कि ये जो टाइटर मिल रहा है ये किस चीज का मिल रहा है? वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. ओके. नेक्स्ट. ओके, आप नोट कर रहे हैं? ये वो दो इक्वेशंस हैं जो कि मैंने इनिशियली आपको लिख के दी हैं, यानी ये स्टेप 6 और स्टेप 8 के अंदर थी. ये देखिए इधर गया, ये स्टेप 6 के अंदर बनाई थी मैंने, एंड सरप्राइजिंगली ये स्टेप 8 के अंदर बनाई थी. सही है. तो ये दोनों बातें भी प्रूफ होगी कि हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन हम सोच तो सही रहे, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन आ गई है, विच इज नॉट अ गुड आइडिया. ओके, एनी हाउ, नो प्रॉब्लम. स्टेप 1 से 8 दोबारा रिपीट हुए, और इस दफा हम एक्चुअली 1.88 ग्राम ऑफ ब्रास यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 2 ग्राम ऑफ ब्रास. ठीक है. तो इनिशियली 2 था, अभी हम 2 नहीं यूज कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं सिनेरियो. हम कह रहे हैं 1.88 लो. सो मेरे पास मास ऑफ ब्रास इज एक्चुअली 1.88. The end point of the titration was found to be 16.50. जैसे मेरी यहाँ पर एवरेज टाइटर वैल्यू आई थी 19.7, तो 2 ग्राम ऑफ ब्रास यूज करने से, बट इतना मास यूज करने से मेरे पास टाइटर वैल्यू ये आ रही है. ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है. ये टाइटर वैल्यू भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं. एंड ऑब्वियसली ये टाइटर वैल्यू सोडियम थायोसल्फेट की होगी, राइट? Na2S2O3. ओके. The equation for the reaction occurring are shown. इस इक्वेशन में दो बातें बहुत अहम है, एक है कॉपर आयंस और दूसरा है आयोडीन. और याद रखिएगा कि कॉपर आयंस और आयोडीन में रेशो है 2:1 का. सिमिलरली इन दिस इक्वेशन आयोडीन और थायोसल्फेट में रेशो कितना है? 1:2 का. ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऑब्वियसली इसको हमने क्या नाम दिया था? व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, क्योंकि ये कॉपर 1 आयोडाइड है. आई थिंक आपको याद होगा, मैंने ये रिएक्शन करवाया भी है आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स केमिस्ट्री ऑफ कॉपर में इन A2. ओके. वो कह रहे हैं डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ आयोडीन फॉर्म व्हेन एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड was added to 25 cm cube of solution B in step 6. Okay. Okay. So guys, मुझे सबसे पहली बात, मुझे सोडियम थायोसल्फेट की कंसंट्रेशन मालूम है 0.100. ऑलराइट. और मुझे उसका वॉल्यूम गिवन है 16.50. तो मैं दोनों को यूज करके मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ. इसकी कंसंट्रेशन कहाँ गिवन थी? ये रही 0.100. सही. माय गुडनेस. चले देखिए, 1000 cm cube of sodium thiosulfate contain 0.100 moles. दिस टाइम आपके पास क्या है? 16.50. तो अगर 16.50 cm क्यूब ऑफ Na2S2O3 आया है, तो बताइए मोल्स कितने होंगे? तो मोल्स ऑफ Na2S2O3 is going to be
ये हो जाएगा 0.1 into 16.5 divided by 1000 is going to be 1.65 into 10 to the power minus 3 moles. Okay. According to the equation, iodine और थायोसल्फेट में 1:2 का रेशो है। ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। अगर आपने 1.6 into 10 to the power minus 3 मोल्स कैलकुलेट किए हैं तो बताइए मोल्स ऑफ आयोडीन कितने होंगे? स्टेप 6 में बताने हैं। ओके, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2, 8.25 into 10 to the power minus 4 मोल्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 8.25 into 10 to the power minus 4 moles. ओके, अब जो मोल्स आपने इसके निकाले एग्जैक्टली वही मोल्स यहाँ पर भी होंगे क्योंकि दोनों के दरमियान रेशो 1:1 का है। सही है। ओके, यूज योर आंसर टू H1 यानी ये वाले मोल्स ऑफ आयोडीन। ओके, यानी आप यहाँ लिख सकते हो कि भाई ये मोल्स ऑफ आयोडीन है। ओहो, this is actually moles of iodine. Then determine the mass of copper ions in solution A and therefore the percentage by mass of copper in the sample of brass. Okay, तो 3 चीजें हैं मेरे पास। सबसे पहली बात, मुझे मास ऑफ कॉपर आयन डिटरमिन करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर मुझे परसेंटेज बाय मास ऑफ कॉपर डिटरमिन करना है इन दिस सैंपल ऑफ ब्रास। व्हाट सैंपल? इन दिस सैंपल ऑफ ब्रास। ओके, ये सैंपल ऑफ ब्रास है। ओके, quite challenging. Okay, so बेटा हम स्टेप 1 देखो, ये है आपके पास कॉपर आयंस और ये है आपके पास आयोडीन। ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। आपने यहाँ कितने मोल्स कैलकुलेट किए थे? 8.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स। तो बताइए मोल्स ऑफ कॉपर आयंस कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ कॉपर आयंस कितने हो जाएंगे? ये एग्जैक्टली वही बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 1.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स। बट रिमेंबर हमने कितना वॉल्यूम यूज किया था? हमने 25 cm³ वॉल्यूम लिया था, है ना? ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये हमने एक्चुअली 25 cm³ लिया था। ठीक है, तो ये जो मैंने मोल्स निकाले हैं ये 25 cm³ में है। मोल्स इन 25.0 cm³। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इस 25 में, अब वापस चलते हैं, थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ हो रहा है लेकिन याद रखिएगा कि ये 25 मैंने कहां से लिया था? इस 250 से। ठीक, तो अब मैं 250 में कैलकुलेट करता हूं। तो 25.0 cm³ gives you 1.65 into 10 to the power minus 3 moles। और ये मोल्स हैं किसके? कॉपर आयंस के हैं। तो लिखो यहाँ पर कॉपर आयंस। तो 250 cm³ में कितने होंगे? तो 10 टाइम्स डाइल्यूशन हो जाएगी। तो मोल्स ऑफ copper ions is going to be
1.65 into 10 to the power minus 2 moles. तो ये मैंने अंदाजे से लिखा है, लेट मी चेक. Multiply by 250 divided by 25, या 0.0165. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लिखा है मैंने, ये आ गया. अब जाहिर सी बात है, मुझे मास कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ कॉपर कैलकुलेट करने के लिए मैं मोल्स ऑफ कॉपर को मल्टीप्लाई कर दूंगा AR ऑफ कॉपर से. तो मोल्स ऑफ कॉपर है मेरे पास 1.65 into 10 to the power minus 2. AR ऑफ कॉपर is 63.5. ये कहाँ दिया हुआ है? एग्जामिनर ने यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 63.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1.04. oh that's 4775 ग्राम. सही है भाई, 1.04775 ग्राम. अब जाहिर सी बात है, लास्ट स्टेप परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ कॉपर अगर आपको डिटरमिन करना है, तो जो कैलकुलेशन किया आपने 1.04775 उसको डिवाइड कर दो सैंपल के मास से, which was 1.88 gram into 100. So divided by 1.88 into 100 is going to be 55.73%. So मैं 55.7% कर देता हूँ. सही है, 55.73%. Okay. My goodness, that's technical area. Okay. ये याद रखिएगा कि कैसे हुआ था. हमने 25 लिया था, फिर 25 से हमने 250 बनाया, 250 से हमने 25 लिया था, तो हमने रिवर्स कैलकुलेशन किए सारे. Okay, next is a small percentage of silver is sometimes found in some brass alloys. मैंने कहा था जब उसने ये मेंशन किया था आपको, ये देखिए जब उसने ये मेंशन किया था there may be small amount of other metal present, तो मैंने कहा था कि इसमें सिल्वर हो सकता है क्योंकि ब्रास का जो सैंपल होता है इसमें एट टाइम्स सिल्वर होता है. तो वो मेरी बात प्रूफ हो रही है कि हाँ सिल्वर हो सकता है. बट वो पूछना क्या चाह रहे हैं ये मैटर करता है. वो कह रहे हैं in step 2 when concentrated nitric acid is added, silver metal is oxidized to silver ions. At the end of step 6, silver ions no longer remain in the solution. Step 6 में हम सिल्वर आयंस को नहीं होते. वो पूछ रहे हैं क्यों. चलो स्टेप 6 पे चलते हैं. ओ दैट्स इजी. तुमने स्टेप 6 में एक्वस पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया. ये एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सिल्वर आयंस के साथ रिएक्शन करके येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड बना लेंगे, जिसकी वजह से वो फिर हमें नहीं मिलता. ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे in step 6 silver ions reacts with potassium iodide to give insoluble yellow precipitate of silver iodide. Okay, end of this question. This question has 19 marks. That was the lengthy paper, and some of the parts are quite challenging, like this part, and this part is quite challenging, and also this part इतना आसान नहीं था. Okay, let's move on to the next question. Question number 2. Question number 2 क्या कह रहे हैं हमसे? The activation energy of the reaction between aqueous magnate ions and aqueous ethane diode ions can be determined as follows. मैंने पहले भी बताया, मैं आज फिर बता देता हूँ कि जनाब ये जो आपका मैग्नेट 7 आयंस हैं, ये
आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, और मैंने पहले भी बताया आज फिर कि ये जो इथेन डायोएटाइन्स हैं ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑब्वियसली इसका कलर पर्पल होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका कलर ऑब्वियसली कलरलेस होता है। ठीक है, तो इसका पर्पल सोल्यूशन होगा, इसका कलरलेस सोल्यूशन होगा। यूज पिपेट टू ट्रांसफर 10.00 cm। चेक, कहा था ना मैंने आपको कि 2 डेसिबल प्लेस है, तो आप ब्यूरेट भी यूज कर सकते हैं, पिपेट भी यूज कर सकते हैं। यही बात मैंने पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करवाई आपको। देखो ये 10.00 कह रहा है, जबकि यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास कितना था 25.00। तो मैंने कहा था आप दोनों में से कोई भी एपरेटस यूज कर सकते हो, बट एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्यूरेट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो वो कह रहे हैं कि आप पिपेट भी यूज कर सकते हो, प्रूफ हो गई बात। 0.02 mole per dm cube magnetized into a boiling tube. So I know the concentration, I know the volume. Sorry, I know the concentration, I know the volume, I can find the moles. Use the second pipette to transfer 10 cm cube of this into the second boiling tube. Okay. यार गाइस, दो तीन बातें हैं। पहली तो बात यह है कि ये पिपेट रिंस होगी KMNO4 के सोल्यूशन से फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स, और ये पिपेट रिंस होगी विद C2O42 माइनस सोल्यूशन। ठीक है, रिंसिंग बहुत जरूरी है ताकि एक्यूरेसी वॉल्यूम की हमारे पास आ जाए। ठीक है, जब हम ब्यूरेट को रिंस करते हैं हम पिपेट को भी रिंस करेंगे। Place both boiling tubes into water bath at approximately 50 degrees Celsius। तो ये thermostatically controlled water bath होगा ताकि इस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। statically controlled water bath। ठीक है, and allow the temperature of both solution to become equal and constant। Record the constant temperature। Okay, pour C2O42 minus solution into a boiling tube containing this solution and immediately start the timer। इसका मतलब हमने स्टॉप वॉच यूज करनी है। ठीक है, continue to stir the mixture during the reaction। Why are we stirring? To mix well। When the reaction finishes, stop the timer and record the time। Repeat the experiment at different temperature and record the results। Okay, okay, वो कह रहे हैं an extra procedural step in the method is required in order to be able to calculate the average temperature of the reaction mixture throughout each। गाइस ये याद रखना कि ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ये एवरेज टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर है बिफोर एक्सपेरिमेंट। ओके, ये एवरेज टेम्परेचर है बिफोर एक्सपेरिमेंट, ये याद रखना। तो हम यहाँ लिख देते हैं एवरेज टेम्परेचर बिफोर एक्सपेरिमेंट। तो जाहिर सी बात है अगर मुझे टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर डिटरमिन करना है तो उसके लिए मैं एवरेज टेम्परेचर आफ्टर रिएक्शन भी तो डिटरमिन करूंगा ना, तभी तो एवरेज टेम्परेचर आएगा। सही है, ओके। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात थी बहुत यार। Calculate the average temperature of the reaction mixture
throughout each experiment. So हम यहाँ लिखेंगे measure another reading of temperature at the end of experiment. ठीक है, and then take the average. Average. ठीक है, so okay, फिर वो कह रहे हैं complete the empty columns in the table giving all values to 3 significant figures. Okay, 3 significant values चाहिए. तो ये 1/333 है. तो अगर ये 1/333 है गाइस, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है राउंड ऑफ करने के बाद अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कह रहे हैं वो, तो ये हो जाएगा 0.00300. फिर 1/323 करूंगा तो मैं राउंड ऑफ करके लिखूंगा 0.00310. फिर 1/315 तो ये हो जाएगा 0.00317. फिर है 0.00323. लास्ट बट नॉट द लीस्ट 0.00329. लॉग टी की बात कर रहे हैं, तो ये टाइम है मेरे पास. और log 10 बेस 10 टी, तो log बेस 10 टी, log बेस 10 और 11, तो आंसर आएगा 1.04. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है इसका भी. ये हो जाएगा 1.54, ये हो जाएगा 1.88. It's going to be 2.16. Last but not the least 2.45. Okay. यहाँ से एक चीज पता चल रही है, अगर तुम नोट करो, आप नोट करो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. यहाँ लिख सकते हैं इस डायरेक्शन में इंक्रीज इन टेम्परेचर कर रहे हैं हम, isn't it? तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आप नोट करें रिएक्शन टाइम शॉर्टन होगा. शॉर्टन रिएक्शन टाइम. और जब रिएक्शन टाइम शॉर्टन होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? हायर. तो हायर रेट ऑफ रिएक्शन. सही है, ये ध्यान में रखिएगा. ये एक कंक्लूजन मुझे मिला है. ओके, आगे चलते हैं. वो कह रहा है आपसे सजेस्ट व्हाई एन एक्सपेरिमेंट विद एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस दैट इज 343 केल्विन वुड प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट इज लेस एक्यूरेट देन द अदर एक्सपेरिमेंट. ओके ओके ओके, लेट्स एक्सपेरिमेंट. टेक्निकल एरिया. ओके, एक मिनट. why why an experiment with an average temperature of this value produces a result that is less accurate than other experiment. यार गाइस, अगर ये एक्सपेरिमेंट लेस एक्यूरेट है तो इसका मतलब इसका परसेंटेज एरर ज्यादा होगा. और परसेंटेज एरर क्यों ज्यादा होगा? तो देखते हैं भाई. परसेंटेज एरर अगर मुझे टाइम का डिटरमिन करना है, सो मैं एरर लूंगा, जो भी मेरा एरर होगा टाइम को ओवर रीडिंग टाइम वैल्यू होगी इनटू 100. सो भाई अगर परसेंटेज एरर ज्यादा है, यानी ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब टाइम कम हो. ओ, गॉट इट गाइस, आप नोट करो
जब आपके पास 333 केल्विन था तो आपके पास टाइम 11 सेकेंड्स था, उसने टेम्परेचर कर दिया 343 केल्विन, यानी इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब टाइम 11 सेकेंड से भी कम हो जाएगा। तो जब टाइम 11 सेकेंड से कम होगा तो परसेंटेज एरर बढ़ जाएगा। मेक सेंस ना? ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। दैट्स अ टफ पार्ट, टेक्निकल पार्ट। तो अब लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, हम इसको पहले तो यहाँ ब्रीफ एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो मैंने बोला है कि at 343 Kelvin, नहीं, at 343, at higher temperature of 343 Kelvin, reaction time must be shorter than 11 seconds. This will lead to greater percentage error. ये मैंने बहुत अच्छा लिख दिया, मेरे ख्याल से यही लिख देना चाहिए। ठीक है, यही लिख देता हूं मैं, जगह नहीं है बट क्या करें। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ with an average temperature of 343 Kelvin. Time taken for reaction is much shorter, hence it gives more percentage error. It gives more percentage error. ठीक है, आई होप समझ में आया हूँ आपको कि जब आप टेम्परेचर 333 केल्विन से इंक्रीज करेंगे, यानी 343 केल्विन पे लेके जाएंगे, तो ये 11 से कम हो जाएगा, लेस देन 11, लेस देन 11। अब अगर लेस देन 11 हो गया यानी ये टाइम 11 से कम हो गया, तो जाहिर सी बात है ये बढ़ जाएगा ना। ठीक है, आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल तो मैं आपको मिलियन टाइम्स बता चुका हूं। व्हाट वी मेजर is dependent variable, and dependent variable has to be on the y axis। तो हम मेजर क्या कर रहे हैं, हम टाइम मेजर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये log t आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अच्छा, वो ये क्या भी रहे हैं आपसे, ठीक है। सो हम यहाँ लिख देते हैं टाइम, ऑलराइट। सो टाइम टेकन, उसके बाद वो कह रहे हैं plot a graph on the grid to show the relationship between this, use cross x to each data point, draw line of best fit। तो guys मैंने ये आपके लिए बना दिया है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ओके, इसमें कोई अनॉमलस रीडिंग भी नहीं आ रही है हमारे पास। ओके, ऑल राइट, द इक्वेशन फॉर द लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज शोन। R is universal gas constant जिसकी वैल्यू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स की हुई है। Use your graph to determine the gradient of the line of best fit. State the coordinates of both points you used in your calculation.
ओके, और ग्रेडियंट जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है, तो सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस इन इट. Determine the gradient, state the coordinates of both points you used in your calculation. Okay, तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि यही वाला पॉइंट हो आपका, एनी पॉइंट, और हम आसान वाला लेंगे. ठीक है, सो मुझे लगता है कि मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, बिकॉज मुझे ये ज्यादा इजी लग रहा है, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर भी है. सो ये है मेरे पास 1.28, 0.00300, राइट. एक तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, और दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो सकता है, दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास हो सकता है दिस वन. ये भी लाइन के ऊपर है, ठीक है ना, ये लाइन आ रही है इसके ऊपर है, तो ये हो जाएगा आपके पास ये है सो 2.02, और ये आ रहा है 0.00320. सही है, तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए. इन कोऑर्डिनेट्स को उठाकर हम लिख देते हैं. सो ये हो जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट 1 1.28, 0.00300, और फिर है आपके पास 2.02, 0.00320. Okay, now we need to find out the gradient. God, gradient किसके इक्वल होता है, change in y over change in x, change in y over change in x. तो change in y मेरे पास क्या है, 2.02 minus 1.28. ओके, change in x मेरे पास क्या है, 0.00320 minus 0.00300. ऑलराइट, तो यहाँ से ग्रेडियंट मेरे पास कितना आ रहा है, 4933.33. ओके, और ये हो जाएगा केल्विन. अच्छा, यूनिट दी हुई ऑलरेडी, चले तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको लिख देता हूँ 4933.33 केल्विन. ओके, उसके बाद वो कह रहे हैं डिटरमिन the activation energy of this reaction. Give your answer to 3 significant figures, include the unit. My goodness, 3 significant figures, activation energy determine करो. Okay, और unit भी बताओ. तो मैं इस कॉपी करता हूँ, क्योंकि यहीं से एक्टिवेशन एनर्जी निकलेगी. ओके, ये आ गई आपकी इक्वेशन. अच्छा, आप सारे बच्चे समझदार हैं, आप जानते हैं कि ये आपका क्या होगा भाई, y. ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, y. और आप जानते हैं कि ये पूरा आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट. दैट इज योर m. फिर ये आपके पास है 1/t. ये आपका क्या हो जाएगा भाई, x, क्योंकि हम, आपको याद है हमने 1/t जो है वो x एक्सेस पे लिया हुआ था. ठीक है, और c क्या हो जाएगा आपका, येलो से कर देते हैं. उप्स, नो 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 नो, येलो से. ये आपका y इंटरसेप्ट है, दैट इज c. सही है, तो ग्रेडियंट किसके इक्वल है मेरे पास, ग्रेडियंट मेरे पास है E0 over 2.303 times r.
ओके, ये मेरा ग्रेडियंट हो गया। ई ए मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2.303 से, मल्टीप्लाई कर देता हूँ आर से। ग्रेडियंट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4933.33 और इसकी यूनिट है केल्विन, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर केल्विन। मुझसे यूनिट मालूम करवा रहे हैं, इसलिए यूनिट की वर्किंग करूंगा मैं, ठीक है। इंटू 2.303 एज इट इज रहेगा, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8.314 और इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, इसकी यूनिट है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये केल्विन इस केल्विन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी वो है 94450 joules mole inverse, right? 94450, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूं तो ये हो जाएगा 9450 जूल्स मोल इनवर्स, और अगर मैं इसको किलो जूल में कन्वर्ट करके लिखूं तो ये हो जाएगा 94.5 किलो जूल्स पर मोल। ओके, अच्छा, आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव आपका स्लोप है, तो इसका मतलब आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी पॉजिटिव आएगी, तो आप साइन मेंशन जरूर करेंगे। उसने कहा नहीं है लेकिन मेंशन करो, तो ये हो जाएगा प्लस, आप दोनों में से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं बेटा, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, टोटली अप टू यू। मैंने राउंड ऑफ कर दी है वैल्यू, तो मैं ये इन दोनों में से कोई एक वैल्यू लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस 94.5 सही है। और यूनिट होगा किलो जूल्स पर मोल। So that the end of this question as well. So we are done with this paper as well. Thank you guys.